Good morning all my dear students of class 5th. This is Priyanka Arora once again in front of you, welcoming you all to your maths online class. Yes students, as you all know that we were doing the new topic, that is chapter number 5 decimal, and already I have given you the explanation of exercise 5A, 5B and 5C. And today in this particular video I will be teaching you the questions of exercise 5D. So without any more delay, let us begin with question number first of exercise 5D, chapter number 5, decimals. Yes students, in question number first we have to convert decimal fractions into decimal numbers, and I hope you must remember what are the decimal fractions. I taught you in my previous two videos that whatever fractions which are having 10, 100 and 1000 in its denominator, then that particular fractions are called as decimal fractions. So here some decimal fractions are given in this question and we have to convert these decimal fractions into decimal numbers. So let us begin with part A. One by one I am teaching you how to convert it into decimal number. Yes, similar questions only according to this question we have done in 5C, question number first, where also decimal fractions were given and I taught you how to convert it into decimal numbers. So keeping that concept in mind, we will be solving this question also. See A part. So it is 2 upon 10, or in other way I can say it is 2/10. How to convert it into decimal form? See, in denominator 1 0 is there. That means decimal will come before one digit, or you can say that after decimal there will be only one digit. So how we can write the decimal form here? To write the decimal form of this 2 upon 10, it will be, first of all you will write only 2. आप सबसे पहले 2 लिखेंगे. अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 1 0 है, 10th है, डिनोमिनेटर में 10th है, तो जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 1 डिजिट के पहले होगी. 1 डिजिट है हमारे पास ऑलरेडी, तो इसके पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा एंड देन वी विल कवर दिस डेसिमल बाय 0. सो 0.2 इज द आंसर ऑफ दिस डेसिमल फ्रैक्शन. नाउ सी बी पार्ट, 83 upon 100. Now here in this part you can see students that in denominator 100 is there. denominator में 100 है. डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो हमारी जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 2 डिजिट के प्रायर होगी, 2 डिजिट के पहले होगी. तो यहाँ पर हमारे पास में न्यूमरेटर में वैल्यू गिवन है 8383. तो पहले हमने हमारा न्यूमरेटर नोट डाउन कर दिया जिस तरीके से गिवन है 83. अब ये दो ही नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं, तो हमारी जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 2 डिजिट के पहले होगी. तो 2 डिजिट आप काउंट करेंगे, 3 and 8, 2 डिजिट्स हो गई. अब आप यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल और फिर आप डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.83 बी पार्ट. देन मूव ऑन टू सी पार्ट. इट्स 19 upon 1000. नाउ इन द डिनोमिनेटर 1000 इज देयर. 1000 मीन्स द डेसिमल will come before 3 digit. ओके, जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 3 डिजिट के पहले होगी. तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर क्या है 19. तो हम पहले अपना न्यूमरेटर लिख देंगे 19. अब हमारे पास में 2 ही डिजिट है, 19 मीन्स 2 डिजिट, बट वी हैव टू प्लेस द डेसिमल बिफोर 3 डिजिट. हमें हमारा डेसिमल 3 डिजिट के पहले प्लेस करना है बिकॉज डिनोमिनेटर में 1000 है. तो हम इस 2 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. 2 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 19 के बिफोर 0 प्लेस करेंगे, आफ्टर नहीं. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0. अब हमारे पास में 3 डिजिट्स हो चुकी हैं, तो 3 डिजिट के पहले हम लगा देंगे हमारा डेसिमल और फिर हम इसको कवर कर देंगे 0 से. सो आवर आंसर विल बी 0.019. नाउ यू कैन सी द प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल इज बिफोर 3 डिजिट एग्जैक्टली. नेक्स्ट 305 upon 1000, part D. Now again you can see students that in denominator 1000 is there. 1000 means our decimal will come before 3 digits. So we are already having 3 digit in the numerator. हमारे पास न्यूमरेटर में 3 डिजिट ऑलरेडी है, तो अब बस हम हमारा डेसिमल प्लेस कर देंगे 3 डिजिट के पहले. 1 2 3, 3 डिजिट के पहले आ गया हमारा डेसिमल और डेसिमल को हमने कवर कर दिया 0 से. सो 0.305 इज द आंसर ऑफ पार्ट डी. लेट अस नाउ मूव ऑन टू पार्ट
E. So these kind of questions we have done in question number first of exercise 5C. इस तरीके से कुछ mixed fraction given थे वहां पर exercise 5C question number first में, and I taught you how to firstly separate it and then convert it into decimal number. So same thing we will be doing here. आपको first step मैंने बताई थी कि अगर mixed fraction given है तो हम mixed fraction को separate करते हैं पहले, और separate करने के लिए हम उसके between में पॉजिटिव साइन प्लेस करते हैं, यानी प्लस का साइन प्लेस करते हैं. तो 8 + 5/100. इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने मिक्स फ्रैक्शन को पहले सेपरेट कर देंगे. अब पॉजिटिव साइन से पहले जो नंबर है होल नंबर, वो तो इसी तरीके से आएगा एज इट इज 8 + 5/100. इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे. इस डेसिमल फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कि 2 जीरोज हैं. 2 जीरो, दैट मीन्स जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 2 डिजिट के पहले होगी. हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में है ओनली नंबर 5, हमारे पास सिर्फ नंबर 5 है. तो इस 5 को डबल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 के पहले 0 लगाएंगे, और 0 से पहले हमारा आ जाएगा डेसिमल, और डेसिमल को कवर कर देंगे हम 0 से. तो ये हो गया 0.05. अब सिंपली जैसा मैंने आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किया था, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. तो ऐड कैसे करेंगे, आप 8 और 0 को प्लस कर देंगे. सो 8 + 0 विल गिव यू 8, और डेसिमल के बाद की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी. तो 8.05 जो है वो हो जाएगा आपका आंसर ऑफ पार्ट ई. नाउ सी पार्ट एफ. E, F, G, H, ये 4 पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर है. तो इसमें भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेपरेट द मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर एंड द डेसिमल फ्रैक्शन. सो 17 को हम अलग कर देंगे और 9/1000 को हम अलग कर देंगे. दोनों को हमने सेपरेट कर लिया. नाउ 17 विल कम एज इट इज प्लस 9/1000. 9/1000 दैट मीन्स जो डेसिमल होगा वो 3 डिजिट के पहले आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1000 है. बट न्यूमरेटर में हमारे पास है ओनली नंबर 9. न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है. तो इस 1 डिजिट को हम 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, और 1 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 9 के पहले 2 जीरोस प्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 9 के पहले 2 जीरोस प्लेस कर दिए. तो अब जो मेरा न्यूमरेटर था वो 3 डिजिट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है. अब ये हो चुका है 009. 3 डिजिट आ गए हैं. अब मैं लगाऊंगी डेसिमल यहाँ पर, और डेसिमल को कवर कर दूंगी 0 से. नाउ सिंपली एड इट. तो 17 और 0 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17. डेसिमल के बाद की वैल्यू एज इट इज आएगी. देयर विल बी नो चेंज आफ्टर डेसिमल. सो 17.009 विल बी द आंसर ऑफ पार्ट एफ. पे अटेंशन ऑन पार्ट जी नाउ. अगेन मिक्स फ्रैक्शन इज देयर, सो वी विल सेपरेट इट बाय पुटिंग 1 एडिशन साइन बिटवीन. सो 13 + 1/100 हमने इसको सेपरेट कर दिया है. अब 13 आप एज इट इज लिखेंगे स्टूडेंट्स. डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 100 है. 100 दैट मीन्स डेसिमल की प्लेसमेंट 2 डिजिट के पहले आएगी, बट हमारे पास में न्यूमरेटर में नंबर 1 है, ओनली एक ही डिजिट है. अब जो हम 1 डिजिट को 2 डिजिट बनाएंगे, तो जो 2 डिजिट बनेगी वो 1 के पहले 0 लगेगा, बिफोर लगेगा, आफ्टर नहीं लगेगा. ओके, अगर आपने आफ्टर 0 लगाया तो ये गलत हो जाएगा आपका डेसिमल में कन्वर्जन. तो ध्यान रखिएगा कि नंबर के आगे ही हम 0 प्लेस करेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए. नाउ पॉइंट लगाएंगे और कवर कर देंगे पॉइंट को 0 से. नाउ सिंपली एड इट. 13 और 0 को ऐड करेंगे हम 13, और डेसिमल के बाद की वैल्यू जैसा कि मैंने बताया इट विल रिमेन सेम. सो 13.01 विल बी द आंसर ऑफ पार्ट जी. नाउ पार्ट एच. अगेन मिक्स फ्रैक्शन, सो सेपरेट इट फर्स्टली. सो इट विल बी 2 + 52/1000. हमने इसको सेपरेट कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, हम 2 को एज इट इज लिखेंगे प्लस 52/1000. 52 के नीचे 1000 है. 1000 मीन्स 3 डिजिट के पहले डेसिमल की प्लेसमेंट आएगी. एंड 52 न्यूमरेटर में है हमारे पास में ओनली 52, दैट मीन्स 2 डिजिट है. तो इस 2 डिजिट को 3 डिजिट में करने के लिए मैं 52 के पहले बिफोर मैं 0 प्लेस कर दूंगी. अब 3 डिजिट हो गए हैं. 052 डेसिमल लगाया, कवर किया डेसिमल को 0 से. नाउ एड इट. 2 और 0 को ऐड किया हमने, आया 2. पॉइंट डेसिमल के बाद की वैल्यू एज इट इज 052. So like this we have to solve our question number first of exercise 5D. Similar question we have done in question number first of exercise 5C also. So I hope everyone must have understood this question also. Okay. So with this let us move on to question number 2 of the same exercise.
So now question number 2 is some decimal numbers are given and we have to convert it into decimal fraction. Decimals में number given है, options given है, parts given है और उनको हमें क्या करना है, fraction के अंदर convert करना है. So see how we will be doing it. First part देखेंगे आप 0.89. अगर डेसिमल के पहले 0 है तो हम सिंपली इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर मैं लिखूंगी डेसिमल फ्रैक्शन. अगर मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली जो नंबर है, 0 नहीं, 0 के अलावा जो नंबर है मैं वो देखूंगी. यहाँ पर है डेसिमल के बाद में 89, तो बेसिकली डेसिमल के बाद में जो नंबर है मैं वो देखूंगी. तो डेसिमल के बाद है 89, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 8989. अब इसको डिनोमिनेटर में हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर में मैं क्या प्लेस करूंगी, मैंने बताया था डिनोमिनेटर में अगर 10, 100 और 1000 होगा तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा. तो यहाँ पर क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 10, 100 या 1000. उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स हैं. तो यहाँ आप देख सकते हो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं. तो ये हमने करा था कि अगर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट होती है तो वो होता है 10, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होती है तो होता है 100 और डेसिमल के बाद में 3 डिजिट होती है तो वो होता है 1000. अभी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. तो इसका आंसर हो जाएगा 89/100. ओके, नाउ here what you have to do, here we will not do like this directly. This is the one way to do directly and the other way is also there with this part. What it is, अगर आप इसको डायरेक्टली करते, लाइक अगर मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखती हूँ, अगर मैं डायरेक्टली लिखती तो डायरेक्टली ये क्या हो जाता मेरे पास में, आप डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल को हटा देना है हमको और हम सिर्फ नंबर लिखेंगे. तो नंबर हो जाएगा हमारा 325. फाइन. अब अगर मैं डेसिमल को हटाती हूँ और मैं देखती हूँ कि डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं, तो डेसिमल के बाद में है 2 डिजिट. 2 डिजिट मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा 100. ओके, सो दिस इज द वन वे. एक तरीका ये है इसका आंसर लिखने का. दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आप और करके दूसरा जो इसका वे है वो भी हम सॉल्व करेंगे. वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम दोनों नंबर्स को सेपरेट कर रहे हैं. मैं 3 और 25 को सेपरेट कर रही हूँ यहाँ पर. तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस 0.25, इन दोनों को मैंने कर दिया सेपरेट. नाउ अब हम क्या करेंगे, 3 एज इट इज आएगा यहाँ पे प्लस 0.25. ओके, तो यहाँ से मैं डेसिमल को रिमूव करूंगी. आप देख सकते हो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो ये 25 एज इट इज आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. क्यों 100? क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट थी, इसीलिए डिनोमिनेटर में आएंगे 2 zeros, दैट मीन्स 100. अब इस स्टेप में आप देख सकते हो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, एक्सरसाइज 5D, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट 4 पार्ट, वहां पे इस तरीके से जब फ्रैक्शन गिवन था, राइट, और हमने उसको क्या करा था, डेसिमल में चेंज करा था. अभी फ्रैक्शन को हमें फ्रैक्शन में ही रखना है, तो हम इसको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको सेपरेट किया था, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. तो आप पहले लिखेंगे 3 और फिर इसके साथ में लिख देंगे 25/100. ठीक है, तो ये हो गया आपका अदर वे ऑफ राइटिंग इट इन फ्रैक्शन. या तो आप लिख सकते हैं 325/100, ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आप देख सकते हो न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है. ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं. तो एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी वे में आंसर लिखें, आपका आंसर करेक्ट ही काउंट होगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू मोर पार्ट्स. जिनको एक पार्ट में नहीं समझ आया, पे अटेंशन ऑन अदर पार्ट्स, यू विल अंडरस्टैंड इट. सी, अब हमें इसको डेसिमल फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो पहले अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट पहले नंबर लिखिए, जो भी नंबर गिवन है, डेसिमल को हटा दीजिए और नंबर लिखिए. तो नंबर हो जाएगा आपका 4101, ये आपका नंबर हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं, डेसिमल को हम हटा रहे हैं. हटा चुके हैं हम वैसे डेसिमल को न्यूमरेटर में. तो डेसिमल के बाद में हमें देखना है कि कितनी डिजिट्स हैं. तो डेसिमल के बाद में आप देख सकते हो 2 डिजिट है, 0 और 1. 2 डिजिट, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास में 2 zeros. फाइन. यही ध्यान रखना है आपको, जब डेसिमल को रिमूव किया जाता है तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर में हमें क्या लगाना होगा, या तो 10 या 100 या 1000. तो वो डिपेंड करता है डेसिमल की प्लेसमेंट के ऊपर. आप क्वेश्चन में देखेंगे अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे आप,
2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे और 3 डिजिट है तो आप डिनोमिनेटर में 1000 लिखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 100। नाउ अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम सेपरेट करेंगे पहले। तो देखिए मैं डेसिमल को सेपरेट कर रही हूँ, 41 को मैंने अलग किया प्लस 0.01, ओके 01 तो था, ये पॉइंट था 0.01, अगर मैं इसको अलग करूंगी तो क्या आएगा 0.01, और जैसा मैंने आपको बताया था पॉइंट को हम अनकवर्ड नहीं रखते हैं तो मैंने पॉइंट के आगे 0 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0.01। अब अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगी तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 41 एज इट इज, और 0.01 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1/100। वाई 1/100? 1/100 में क्यों लिख सकती हूँ, डेसिमल को मैंने रिमूव करा तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, अगर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 2 zeros आएंगे, और ये क्या है 01। तो जैसा मैंने आपको बताया था 01 अगर नंबर के पहले 0 लगा हुआ है, नंबर के पहले 0 लगा हुआ है तो ये क्या काउंट होगा, ये काउंट होगा 1, इसको हम लिखेंगे ओनली नंबर 1, 01 इज 1। अगर नंबर के बाद में 0 होता, यहाँ पे अगर 01 की जगह 10 होता तो 10 को हम 10 ही लिखते, 10 चेंज नहीं होता, नंबर के पीछे से 0 को रिमूव नहीं किया जाता, बट नंबर के पहले अगर 0 है तो वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये 01 कन्वर्ट होके क्या हो गया 1 और अपॉन 100 आया, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पर आ गया 1/100। अब आप इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 41 रहेगा आपका होल नंबर जो कि सेंटर में आएगा, और 1/100 आपका आ जाएगा फ्रैक्शन के अंदर। सो 41:1/100 इज द अदर वे ऑफ राइटिंग द आंसर ऑफ पार्ट सी। इस तरीके से हम अदर वे में इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, पे अटेंशन ऑन डी पार्ट नाउ। अब आप डी पार्ट के ऊपर ध्यान देंगे, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, अगर आपको नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो वो बहुत इजी है, लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब आप देखिए नॉर्मली अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल को पहले आप हटा दीजिए, सबसे पहले आप डेसिमल को भूल जाइए। तो डेसिमल अगर हट गया तो हमारे पास में नंबर क्या आ गया 7002, 7002। अब इस डेसिमल नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आएगा। तो अब हमें ये चेक करना है इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10, 100 या 1000। तो आप देखिए डेसिमल के बाद में डिजिट्स कितनी है, तो यहाँ पे आप देखिए काउंट करिए 002, दैट मीन्स 1, 2, 3 डिजिट है डेसिमल के बाद में। तो अगर 3 डिजिट है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 7002/1000। और अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हम इसको करने के लिए पहले डेसिमल को सेपरेट करेंगे। तो डेसिमल को मैं कैसे सेपरेट करूंगी, 7 प्लस, अब पीछे का जो पार्ट है उसको मैं अलग कर दूंगी। तो पीछे का पार्ट क्या है 0.002, पीछे का पार्ट यही था 0.002, और आपको पता है पॉइंट को हम कवर करते हैं, डेसिमल को कवर करते हैं, तो मैंने 0 लगा दिया 0.002। अब मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगी, तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगी, 7 का तो 7 ही आएगा, 0.002 इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अब आप देखेंगे 2 के पहले सारे जीरोस हैं, 2 के बाद में 0 नहीं है। तो अगर 2 के पहले जीरोस होते हैं तो आगे वाले जीरोस यानी बिफोर वाले जीरोस हम हटा सकते हैं, तो ये सारे जीरोस हट जाएंगे और हमारे पास रहेगा सिर्फ नंबर 2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में कितने जीरोस आएंगे, आप देखिए डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं 1, 2, 3, तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे हमारे पास में 3 जीरोस, तो ये हो जाएगा 7 + 2/1000। तो अगर आप इसका मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा सेंटर में और आ जाएगा आपके पास में 2/1000 डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। फाइन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट करने के लिए, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सी नाउ ई पार्ट। ई पार्ट को अब हम कैसे करेंगे, पहले अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए मैंने आपको सिंपली बताया आप बस डेसिमल को हटा दीजिए। तो डेसिमल को जब आप हटाएंगे यहाँ पर तो आपका नंबर जो भी है वो लिख दीजिए 132882, ये हमने पहले अपना नंबर लिख दिया जो भी क्वेश्चन में गिवन था। अब हम लगाएंगे डिनोमिनेटर में 10,
100 या 1000। तो देखिए डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर 882 है, दैट मीन्स 3 डिजिट है, 3 डिजिट मीन्स 1000। तो यहाँ पे हमारे पास में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। और अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर शो करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हम हमारे नंबर को सेपरेट कर लेंगे। तो नंबर को सेपरेट करने के लिए 132 को हम अलग रखेंगे, प्लस डेसिमल के बाद में क्या है हमारे पास में 882, ये है हमारे पास डेसिमल के बाद में। तो हमने लिख दिया 0.882, कवर करेंगे 0.882 को 0 से। ना अगेन 132 आप एज इट इज लिखेंगे, 0.882 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले 882 लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1000। ओके, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 882 अपॉन 1000। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 132 आ जाएगा सेंटर में और न्यूमरेटर में आ जाएगा 882 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। सो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ई। पार्ट ई को मिक्स फ्रैक्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली दोनों ही आंसर्स करेक्ट है। नाउ पे अटेंशन ऑन पार्ट एफ। नाउ पार्ट एफ में क्या है स्टूडेंट्स, 3.413। तो पहले वही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे, तो डेसिमल को आप हटा दीजिए। डेसिमल को हटाने के बाद में आपकी वैल्यू हो जाएगी 3413। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद में जितने नंबर्स हैं उतने जीरोस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 3 जीरोस। तो ये हो जाएगा 3413 अपॉन 1000। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर इसी को हमें मिक्स फ्रैक्शन में शो करना है तो हम डेसिमल को सेपरेट करेंगे। तो पहले आ जाएगा 3 प्लस डेसिमल के बाद में 0.413 है। ओके, सो 0.413 को हम कवर करेंगे 0 से, तो ये हो गया 0.413। अब जो होल नंबर है वो तो वैसा का वैसा ही आएगा, 3 का 3 आएगा। 0.413 इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप सिंपली 413 के नीचे 1000 को प्लेस कर देंगे। 1000 को क्यों प्लेस करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स है, तो ये आ जाएगा 413 अपॉन 1000। अब सिंपली आप क्या करिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 आ जाएगा सेंटर में एज अ होल नंबर, 413 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 1000 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। सो 3:413 अपॉन 1000, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, नाउ सी पार्ट जी 0.008। अब ये वापस यहाँ पर सिंपल है, ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होगा। मिक्स फ्रैक्शन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के पहले भी 0 है। अगर डेसिमल के पहले भी 0 होता है तो सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन ही आता है। ओके, उसमें मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता। बट आप दूसरे पार्ट्स में देखिए, डेसिमल के पहले यहाँ 3 था, 41, 7, 132, 3। ओके, तो इन सब पार्ट में डेसिमल फ्रैक्शन 2 वेज में हम लिख सकते हैं, एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में और दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। जबकि अगर डेसिमल के पहले 0 है तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर इसको लिख सकते हैं। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर यू कैन सी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है। अब आप देखेंगे इसी तरीके से जब हम जी पार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्टली नंबर क्या है, 8। डेसिमल के पहले सब 0 है, तो मैंने कहा था आपको कि अगर डेसिमल के पहले सारे जीरोस होते हैं तो हम उस जीरोस को हटा देते हैं। देखिए पार्ट डी में मैंने आपको बताया था डेसिमल के पहले यहाँ पे सारे जीरोस थे, तो हमने इन जीरोस को हटा दिया था और सिर्फ हमने नंबर लिखा था 2। इस प्रीवियस पार्ट सी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 41 प्लस 0.01 को जब हमने सेपरेट किया था तो डेसिमल 1 से पहले यहाँ पर 0 थे, तो 0.0 ये दोनों हमने हटा दिया था और हमारे पास में नंबर रहा था सिर्फ 1 और नीचे 100, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स थी। तो वही हम यहाँ करेंगे। हमारे पास में 8 के पहले जीरोस हैं, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट 0 है और डेसिमल के पहले भी 1 डिजिट 0 है, तो ये सारे जीरोस हम रिमूव कर देंगे, डेसिमल को भी हम रिमूव कर देंगे, हम लिखेंगे सिर्फ नंबर 8। अब आप देखिए कि डेसिमल के बाद में कितनी
डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 2 3 डिजिट्स हैं। अगर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास में 1000, 3 zeros. So simply 8 upon 1000 will be the answer of this part. There will be no mixed fraction in part G. It is proper fraction where numerator is smaller than the denominator. Part G और पार्ट ए प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि इसमें डेसिमल के पहले जो वैल्यू गिवन है वो है 0। तो अगर डेसिमल के पहले 0 होता है तो जो फ्रैक्शन कन्वर्ट होके हमारे पास में आता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड नहीं। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू एच पार्ट। अब एच पार्ट में आप वापस देखिए कि डेसिमल के पहले 6 है। अगर डेसिमल के पहले 6 है दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन दोनों कैलकुलेट होंगे। तो किस तरीके से कैलकुलेट होंगे, वैसे ही जैसा हम अभी बाकी पार्ट्स में करते आए थे। हम पहले डेसिमल को रिमूव कर देंगे, डेसिमल को हम हटा देंगे। तो डेसिमल को हटाने के बाद में जो नंबर हमारे पास होगा वो होगा 608। ओके, डेसिमल हट गया, सिर्फ हमने नंबर लिखा 608। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्योंकि हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10, 100 या 1000। तो यस, हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 100। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट है। 2 डिजिट मीन्स 2 zeros इन द डिनोमिनेटर, सो वी विल पुट 2 डिजिट्स 2 zeros इन द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 1 0 0। ये तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट? और करके हम पहले क्या करेंगे, 6 को अलग कर देंगे प्लस डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है 08, इसको हमने अलग कर दिया, डेसिमल लगाया और डेसिमल को हमने कवर कर दिया 0 से। तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो गया 0.08। डेसिमल नंबर हुआ है 0.08। अब हम जब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, और आप देख सकते हो 8 के पहले 0 है, फिर पॉइंट है, फिर 0 है, तो नंबर के पहले 0 0 है तो हम वो जीरोस हटा देंगे, सिर्फ हमारे पास में आएगा 8। और डिनोमिनेटर में कितने जीरोस आएंगे, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 2 zeros, दैट मीन्स 100 आ जाएगा हमारे पास में डिनोमिनेटर में। अब जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाएगा 6:8 upon 100। तो इस तरीके से आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा इस क्वेश्चन में, बट एक बार आप समझिए और फिर खुद करने की कोशिश करिए, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस क्वेश्चन simple. Now I am again explaining one part of question number first and one part of question number 2 together so that you can understand the comparison between both. अब मैं दोनों का एक एक पार्ट सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आप जब दोनों में कंपैरिजन करेंगे, आमने सामने जब दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको और इजीली ये क्वेश्चन समझ आएगा। ओके, एक बार इसको वापस रिपीट कर रही हूँ। अगर डेसिमल के पहले 0 है तो जब आप डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आई होप आपको याद होगी, व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे डेसिमल नंबर को जिसके आगे 0 ना होके कोई दूसरी वैल्यू होगी, लाइक इस पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल के पहले 0 था तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे डेसिमल के पहले 0 नहीं है, दूसरी डिजिट है, दैट मीन्स 3 है यहाँ पर। तो अगर डेसिमल के पहले कोई दूसरी डिजिट होगी अदर देन 0 तो वो जो डेसिमल नंबर है वो डेसिमल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट होगा तो फ्रैक्शन जब हमको मिलेगा तो वो होगा या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोनों ही आंसर्स करेक्ट होंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको इम्प्रॉपर और मिक्स्ड दोनों निकालना बताया है। कैसे निकालेंगे आप इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर निकालने के लिए बस डेसिमल आप रिमूव कर देंगे, नंबर जो भी है वो नंबर लिखेंगे 3 2 5। अब आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद में 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स है, तो हमारे पास यहाँ पर 325 के नीचे क्या आ गया 100, 2 zeros आ गए, तो 325 upon 100 और दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। और अगर इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप 3 और 0.25 को सेपरेट करेंगे, पहले 3 अलग रहेगा, 0.25 अलग होगा। अब 0.25 डेसिमल नंबर को हम डेसिमल
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 25 हम लिखेंगे, डेसिमल हमने हटा दिया, डेसिमल के बाद में 2 जीरो हैं तो डिनोमिनेटर में आ गया 100। अब सिंपली आप क्या करिए, 3 और 25/100 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके 3 बन जाएगा होल नंबर और 25/100 3 के साथ में एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज कंप्लीटली अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। Okay, so here I have given one more time the explanation of this part. Now I am taking one example from both the question number 1 and question number 2 to explain you this concept one more time. Okay, so now I have taken here the example of one mixed fraction which you have to write in डेसिमल एंड 1 डेसिमल विच यू हैव टू राइट इन फ्रैक्शन। एक मिक्स फ्रैक्शन लिया है मैंने जिसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और एक डेसिमल लिया है जिसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो दोनों जब आप साथ में देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हम इजीली कर चुके थे, पहले भी हमने किया था लास्ट लेक्चर में। इसको मैंने कैसे बताया था आपको कि सबसे पहले आप सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए आपने क्या किया था, जो होल नंबर है उसको अलग कर दिया था प्लस जो फ्रैक्शन नंबर है उसको आपने अलग कर दिया था। तो इस तरीके से हम इसको दोनों को अलग कर देंगे। ओके, सेपरेट कर देंगे। अब 132 तो एज इट इज आएगा यहाँ पे, तो 132 एज इट इज आ गया, प्लस यहाँ पे जब हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं। तो डिनोमिनेटर में है 3 जीरोस, तो इन 3 जीरोस के कारण जो हमारा डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 3 डिजिट के पहले होगी, 1 2 3। तो पहले आप न्यूमरेटर की वैल्यू लिख दीजिए जो भी गिवन है, 882। 3 डिजिट है हमारे पास में, डिनोमिनेटर में 3 जीरोस थे तो हमारी डेसिमल की प्लेसमेंट 3 डिजिट के पहले आएगी। तो ये हो गया 0.882। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए 132 और 0 को ऐड करिए, सो 132 डेसिमल के बाद की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 882। सो दिस इज द आंसर ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेती हूँ, जैसा कि मेरे को कन्वर्ट करना है यहाँ पर 45, यहाँ पर 9/1000। अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी, वही करूँगी मैं, पहले मैं सेपरेट कर दूंगी दोनों को। तो यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, 45 को लिखा मैंने सेपरेटली और 9/100 को लिखा मैंने सेपरेट, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। दिस इज द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप देखिए क्या करेंगे, हम किस तरीके से इसको करेंगे, 45 प्लस यहाँ पर 9/100 है तो डेसिमल में चेंज होगा ये फ्रैक्शन। तो डेसिमल में चेंज होने के लिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, बट हमारे पास में यहाँ पे सिंगल डिजिट है 9, तो इस सिंगल डिजिट को हम डबल डिजिट में चेंज करेंगे। तो 9 के पहले मैंने 0 लगाया, हो गई डबल डिजिट, इसके आगे मैंने लगाया डेसिमल और डेसिमल को कवर कर दिया 0 से। सिंपली अब मैं जब इसको ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 45 डेसिमल के पहले एज इट इज और डेसिमल के बाद 09। सो 45.09 मेरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट का। अब इसका रिवर्स, अगर डेसिमल में गिवन है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट वे क्या होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट वे बता रही हूँ, दोनों ही एग्जाम्पल मैं आपको डेसिमल वाले फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। देखिए आप 132.882, ओके, जो हमने यहाँ पे डेसिमल निकाला था उसी को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बता रही हूँ। और यहाँ सेकेंड पार्ट में डेसिमल क्या निकाला था, 45.09। इसको कैसे फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो आप देखिए, अगर नॉर्मली फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले आप ये नंबर लिख दोगे, जो भी नंबर गिवन है वो आप नंबर लिख दोगे, डेसिमल को आपको हटा देना है। तो डेसिमल को हटा के नंबर क्या हो जाएगा, 132.882, ये हो गया हमारा नंबर जब हमने डेसिमल को हटा दिया। अब आपको पता है कि अगर डेसिमल को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा या 1000 आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स हैं क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो यहाँ डेसिमल के बाद में 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास में 1000।
तो ये हो जाएगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर? क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, सो दैट्स व्हाई दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना होता तो हम कैसे करते? मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए आप देख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में क्या गिवन था, 132:882/1000, यही गिवन था ये नंबर मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। 132 को आप अलग लिखिए, प्लस जो डेसिमल वाला नंबर है उसको हम अलग लिखेंगे। 0.882 को हमने बिल्कुल सेपरेटली लिख दिया। अब पॉइंट को कवर करते हैं हम 0 से, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट को भी कवर कर दिया 0 से। नाउ अब इस 132 को आप एज इट इज लिखोगे। 132 में तो आपको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं है। जहाँ डेसिमल है वहीं पर ही हम फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे क्योंकि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे यहाँ हमने डेसिमल को हटा दिया था उसी तरीके से हम यहाँ से भी डेसिमल को हटा देंगे। हम सिर्फ नंबर लिखेंगे, तो नंबर है 882 और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। ओके, अब बस इस स्टेप के बाद में मिक्स फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? ये जो है 132 ये आपका काउंट होगा होल नंबर, तो इसको आप लिखेंगे सेंटर में 132, और ये जो पीछे है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर तो हमको मिल गया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 882/1000। तो ये हो जाएगा आपका अदर वे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये मिक्स फ्रैक्शन। और आप देख सकते हो यही था यहाँ पर 132:882 और यही हम कैलकुलेट करके लेकर आ गए मिक्स फ्रैक्शन में जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर एंड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू improper fraction or mixed fraction. Now one more example I have taken here, so let us solve this also. 45.09, अगर इसको नॉर्मली हमें इम्प्रॉपर में करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिख देंगे 4509, पहले जो भी नंबर गिवन है हम वो नंबर लिख देंगे। नाउ अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000। तो आप देखिए डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स की प्लेसमेंट है, तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 2 zeros, so 4509/100। सो दिस विल बी द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में करते तो हम क्या करते, सेपरेट करते। 45 प्लस पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को अलग रखिए, 0.09, डेसिमल के बाद में क्या है, डेसिमल और डेसिमल के बाद में 09, सो 0.09 और डेसिमल को कवर करेंगे हम 0 से, सो 0.09। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में 45 तो एज इट इज रहेगा, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फाइन, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शंस में, हम सिर्फ नंबर लिखेंगे 9 के पहले वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ 9 आएगा। 9 लिखा हमने, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट मीन्स 2 zeros, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2 0 डिनोमिनेटर में, सो 9/100। नाउ सिंपली अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 45 एज इट इज आ जाएगा होल नंबर और यहाँ आ जाएगा 9/100। अब आप देखिए ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन और यही मैंने क्वेश्चन लिया था। अब आप देख सकते हैं मैंने यही लिया था 45:9/100। तो कैसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया और किस तरीके से फिर इस डेसिमल को वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो यही तरीका है किसी मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए और डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ आई होप स्टूडेंट्स दैट क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2 is clear to you. Please go through these questions. You must be finding it bit confusing, but I hope when you will start solving it yourself, then you will be finding it easy. Okay, but still if you find any difficulty, any doubt, then feel free to ask me in the live class, or you can leave your doubts in the comment section below. I will try to clear your doubt in my next lecture. So today here only I am ending my lecture. I have given you the explanation of only 2 questions of exercise 5D, that is question number 1 and question number 2. I want you to clear firstly these 2 questions, then in my next lecture I will be explaining you 2 more questions of this exercise, and then we will be completing our exercise 5
D. So till then, you please complete your work of question number 1 and 2 and be ready with your doubts in the live class. Okay students, so meet you all back in next online class. Till then, please take care of yourself. Thank you so much.